Previous class we practiced some numericals, some problems. So we are proceeding to the next numericals problems. Okay. So this is the question number 11 of your NCRT book. Read it. It says that there are two objects and each has mass 1.5 kilograms. They are moving in a straight line but in opposite direction. There are two objects. They are moving on the same line but in opposite directions, and 1.5 kg is their mass. Okay. Their velocity is 2.5 meter per second एंड बिफोर द कॉलिजन मीन्स देयर विल बी अ कॉलिजन. तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक कॉलिजन है, तो यू विल यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ड्यूरिंग कॉलिजन. दैट थिंग, ओके, ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर. ओके, मीन्स when collision happens they stick together. After collision they stick together and move together. That's how collision takes place. Means there are two objects moving in opposite direction. तो अगर इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो they cannot meet, they can never meet. But opposite direction अगर उनकी ये है, ये भी opposite direction है, then they will stick together and then move together. So that is the situation. Two objects A and B, same mass, same velocity, are moving towards each other. This is opposite direction. Okay, this is not the same direction. This is moving in this direction, that is moving in this direction. Okay, so this is opposite direction. Now they stick together and moving one direction, either this or this, any direction. So this is a collision, and what we are asked, what will be the velocity of the combined object after collision? So after collision, what will be the velocity? Now two objects have changed into one object. So we will use the same formula which we have been using before, that m1u1 plus m2u2 means total initial momentum is equal to total final momentum, right? This is the conservation of momentum. Total momentum of two objects before collision is equal to total momentum of ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कॉलिजन. मीन्स अगर एक का मोमेंटम कम होता है तो दूसरे का इंक्रीज हो जाता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि मोमेंटम थोड़ा, सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड टू अनदर ऑब्जेक्ट. जैसे कि आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ते हैं दैट एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू हीट एनर्जी, लाइक पोटेंशियल टू काइनेटिक. सिमिलरली मोमेंटम इज कंजर्व्ड. Momentum of A, sum of momentum of A is transferred to sum of the momentum of B. ठीक है. So momentum gets transferred between objects. एक का कम होगा तो दूसरे का ज़्यादा होगा. That's how it remains conserved. We define conservation of momentum in different ways. That sum of momenta is same after before collision, that thing, or momentum is transferred from one to another. Or you can also say that change in momentum is equal and opposite. Means अगर एक का momentum increase होगा तो दूसरे का डिक्रीज होगा. इन दिस वे इक्वल एंड अपोजिट जो है दोनों में मोमेंटम का चेंज आता है, एक का डिक्रीज दूसरे का इंक्रीज, ऐसा भी हो सकता है. सो दैट इज हाउ टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड. सो मैथमेटिकली वी राइट इट इन दिस वे. सो व्हाट वी आर गिवन, मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज सेम, वेलोसिटी इज ऑल्सो सेम. ओके, सो 1.5 into velocity is given 2.5. okay, this is velocity, so we have to take care of sign, क्योंकि first these are opposite direction, objects are moving in opposite directions. So one velocity will be positive, another velocity will be negative. So it will be 1.5 into minus 2.5, right? Okay, then now m1 and m2 combine together as one object. So m1 plus m2, and they move with same velocity, so that we consider v, capital V. Okay, m1 plus m2 into v. Now you can see these are opposite, so this will be 0, and m1 plus m2 will be now 1.5 plus 1.5 v into final velocity of both objects. एक ही v है क्योंकि दोनों अब एक ही ऑब्जेक्ट बन गए हैं, दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइन हो गए हैं. So now in this case v will be 0.
means final velocity will be 0. So can you imagine this situation कि actually हो क्या रहा है? Two objects come towards each other in opposite direction and they stick together. बस उसके बाद कोई motion नहीं हुआ. दो objects आए और दोनों एक दूसरे से जुड़ गए. उसके बाद कोई velocity नहीं, zero velocity. Okay, so that's how we can interpret this kind of collision. Okay, you should practice this in your rough notebook. So let's proceed to the next question. Read question number 13 of your exercise. A hockey ball of mass 200 grams traveling at 10 meter per second struck by a hockey stick so as to return its along original path with velocity 5 meter per second. Okay, so we are talking about a hockey stick and a ball, hockey ball. Okay, so a ball comes, this is hockey stick, a ball comes, it strikes a hockey stick and goes back in opposite direction again in its original path. आती है और वापस जाती है. ठीक है, तो it is asking change in momentum of the hockey ball by the force applied by hockey stick. Change in momentum कितना होगा ball. Now you may think that momentum तो same होता है, total momentum same होता है, तो change in momentum 0 होना चाहिए, but no. Please note that change in momentum of two objects of total momentum of objects is constant. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम तो चेंज होगा. जो दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम जो है वो सेम रहता है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट का तो मोमेंटम चेंज होगा. एक का कम होगा, दूसरे का ज़्यादा, या कुछ भी चेंज हो सकता है. ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होना ही है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सेकेंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा और टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा. नाउ वी आर आस्क्ड चेंज इन मोमेंटम ऑफ hockey ball. Okay, so we can calculate easily what will be the change in momentum. So m mass is same, mass तो same रहेगा, v2 minus v1. Okay, this is velocity direction का आपको ध्यान रखना है. तो mass of the ball given था 200 grams. 200 grams, gram is not SI unit, so we will convert it into kilograms, 0.2 kilograms. Right? Then it says that initial velocity was 10 meter per second, final 15. तो 10 माइनस, अब जो बॉल वापस आती है वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है, तो माइनस 5 we will take minus 10 final 5 initial, but these are opposite directions, so we will take one more minus, so that will be 0.2 multiplied by 50. Okay, its answer will be 3 meter per second. What will be SI unit? Kilogram meter per second. That is the SI unit of momentum, right? Equal to 3 kilograms meter per second. Because unit of mass is kilogram, comes from here 0.2 kilograms, and this is meter per second, 15 meter per second. So that's how we can easily solve it. Very simple, right? Now proceed to the question number 14. Read question number 14 from your book, NCERT book, chapter 9. Okay, so let's proceed to the next question. Question number 14 of your NCERT book, exercise question. It says that there is a bullet of mass 10 grams traveling horizontal direction with a velocity of 150 meter per second. ठीक है, strikes a wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. So there is a wooden block, कोई भी wooden का block है, एक बुलेट आती है. ठीक है, उसकी स्पीड दिया हुआ है, मास दिया है, इट स्ट्राइक्स, वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करती है और उसके बाद 0.03 सेकेंड्स में आकर कहीं पर अंदर रुक जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है, अंदर घुस जाती है, इसके अंदर जाकर फंस जाती है. ठीक है, सो दैट इज पेनिट्रेशन. ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट पेनिट्रेशन ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट. ये डिस्टेंस कितना है, कितने डिस्टेंस तक वुडन ब्लॉक के अंदर, कितने डिस्टेंस तक बुलेट ने पेनिट्रेट किया. ठीक है, सो वी आर गिवन टाइम आल्सो. टाइम जो अंदर का टाइम है वो 0.03 सेकंड्स. सो इजीली वी कैन फाइंड आउट
डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस. यहाँ पर कोई फोर्स की बात नहीं हो रही, तो लॉज ऑफ मोशन या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम यूज़ नहीं करेंगे. हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन से. ओके, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आपको जब एक्सेलरेशन गिवन हो, टाइम, वेलोसिटीज गिवन हो, तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं. बट इन केस, इस केस में एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, सो एक्सेलरेशन के बिना कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं सॉल्व कर सकते आप. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट. तो एक्सेलरेशन यू नो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम. तो गन फाइनली बुलेट फाइनली कम्स टू रेस्ट, मींस फाइनल वेलोसिटी इज 0 माइनस. ओके, so minus initial velocity is 150, right? So 150 is initial velocity and time 0.03 seconds के बाद वो रुक जाती है. Okay, so it will be minus 150 into 100 divided by. Okay, so that will be minus 5000 meter per second square. Minus 5000 meter per second square is its acceleration. Now see, acceleration is negative. Acceleration negative means speed is decreasing. Finally bullet comes to rest. So acceleration we have got. Now we can use any equation of motion for distance, second equation or third equation. ठीक है, कोई भी equation हम use कर सकते हैं. So we are using as per your choice. So we are using third equation of motion. Okay, 2as is equal to v square minus u square. So we have to find out distance of penetration. Final velocity is 0, initial is given, acceleration we have find out. Okay, so 2 into minus 5000, that will be minus 10,000 into s. Final velocity is 0 and initial velocity was 150, so 150 का square. Now we can easily find out distance. S is minus minus will be cancelled. 150 square is 225, 100 and 10,000. So that will be 2.25 meters is the your answer. 2.25 meters. Okay, that means that distance of penetration is 2.25 meters. मीन्स जो वुडन ब्लॉक था आपका, जब बुलेट उसके अंदर पेनिट्रेट करती है, अंदर चली जाती है, तो 2.25 मीटर तक ही जाती है, उसके बाद रुक जाती है. ये है. ओके, और ये जो टाइम गिवन है यहाँ से स्टार्ट होता है जब वो वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करती है. तो दैट वाज एक्सेलरेशन. नाउ नेक्स्ट इट इज आस्किंग कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स exerted by wooden block on the bullet. Now you have to find out force by the block on the bullet. So we have to consider mass of the bullet and acceleration of the bullet. So force is equal to ma, force by wooden block on the bullet. So mass of the bullet, acceleration of the bullet. Mass of the bullet given है हमें 10 grams और एक्सेलरेशन आपने पहले निकाला था minus 5000 meter per second square. Now you have to also take care कि ये ग्राम्स में है, तो आपको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना होगा. 0.01 kilograms. Okay, so that will be minus 50 newtons, minus 50 kilogram meter per second square. Okay, तो माइनस इसलिए है बिकॉज फोर्स है जो द फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट मोशन ऑफ बुलेट. जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रही थी, वुडन ब्लॉक जो है अपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो दैट इज 50 minus 50 newtons. Look at question number 15 of your NCERT book. Question number 15 says an object of mass 1 kilograms traveling to a straight line in a straight line with a velocity of 10 meter per second. एक collision होता है, collide with a wooden block of 5 kg. ठीक है, then they move together in a straight line. ठीक है, so you can consider कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है और एक
वुडन ब्लॉक इधर है, ऑब्जेक्ट कम्स टुवर्ड्स वुडन ब्लॉक, ठीक है, आफ्टर कॉलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड दे मूव टुगेदर, दोनों स्टिक हो जाते हैं, मतलब मास लास्ट में सेकंड मास हम लेंगे वो एक ही लेंगे, और वेलोसिटीज भी, फाइनल वेलोसिटी भी दोनों की सेम होगी, क्योंकि अभी एक ही ऑब्जेक्ट पर है, अभी हमने पहले भी किया था. So simple, there is a collision force, so in a collision total momentum remains same. We are asked calculate the total momentum before and after the impact, ठीक है, and calculate the velocity of combined object, ठीक है. So same चीज भी यूज करें, we will use law of conservation of momentum. Initial momentum is this m1 u1 plus m2 u2. सो इनिशियल मोमेंटम हमें अलग अलग पूछा गया है, तो इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है. सो स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम्स है, ठीक है. स्पीड इसकी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड. जो वुडन ब्लॉक है वो स्टेशनरी है, तो उसका वेलोसिटी 0 होगी, मास है उसका 5 किलोग्राम्स, 5 इंटू 0 इसलिए क्योंकि वुडन ब्लॉक स्टेशनरी है. तो इनिशियल जो मोमेंटम होगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम दैट इज 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम? इनिशियल यू आर फाउंड आउट, व्हाट विल बी द फाइनल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम विल आल्सो बी same because total initial momentum equal to total final momentum. So final momentum is also 10 kg per second. Now you have to find out velocity of combined object. So velocity of combined object you can easily find out from the same formula. Okay. So we use m1 v1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m. According to the language of question, we shall write total initial momentum which was 10 is equal to total final momentum of object 1 and object 2. अब दोनों फाइनली इस क्वेश्चन में है कि कॉलिजन के बाद जो है दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक हो जाते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट बन जाते हैं. सो m1 प्लस m2 विल बी नाउ 1 प्लस 5 6, ठीक है, एंड v1 v2 इज ऑल्सो सेम, so we can write it 6 into v. Okay, so final velocity will be 10 by 6, that will be 1.66 meter per second. Okay, 1.66 meter per second, that is the final velocity of the combined object. Next question, question number 16. Don't just watch, also practice in your notebook. What does it say? Mass is given, an object is accelerated uniformly from 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. ठीक है, 6 seconds में velocity change हुआ 5 meter per second to 8 meter per second. So it means there is some acceleration. Calculate initial and final momentum and magnitude of force exerted on the object. Simple. So initial momentum will be mu, right, and final momentum will be m. हम सिंगल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई कॉलिजन नहीं हो रहा है, सिंपल मोमेंटम ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट. ओके, सो मास इज सेम, मास कितना है ऑब्जेक्ट का गिवन है 100 किलोग्राम्स, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी इज 5, सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी इज 8, सो वी कैन फाइंड आउट इजीली 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इज द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ वन ऑब्जेक्ट, ठीक है. नाउ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा? फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. The mass is 100. Now acceleration we need to calculate by v minus u by t. Okay, so 8 minus 5 3, और ये चेंज होता है कितने में? 6 सेकेंड्स में, ठीक है. दिस चेंजेस इन 6 seconds, so that will be 50 newtons. Very simple and easy answer. Now proceed to question number 18. It says that how much momentum will a dumbbell जो जिम में यूज करते हैं, of mass 10 kilograms transfer to the floor
मीन्स एक डंबल जो है एक फ्लोर पर गिर गया है नीचे 80 सेंटीमीटर हाइट से, तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा? ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम मीन्स ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम यू हैव स्टडीड इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम रिमेन्स सेम. क्यों? बिकॉज सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू अनदर ऑब्जेक्ट. मीन्स एक का कम होता है मोमेंटम, दूसरे का बढ़ जाता है, इस तरीके से, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन. एक का कम होगा, इंक्रीज होगा, दूसरे का डिक्रीज होगा, कुछ मोमेंटम ट्रांसफर होगा. पूरा मोमेंटम भी ट्रांसफर हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद रेस्ट पर आ जाए. कोलिजन के बाद तुरंत रेस्ट पर आ जाए, इट मीन्स जो टोटल मोमेंटम, पूरा मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट ने अपना दूसरे को दे दिया. तो इस केस में वही हो रहा है, डंबल ज़मीन पर गिर रहा है, डंबल फिर रुक गया है और पूरा मोमेंटम जो है फ्लोर को ट्रांसफर हो गया है. मीन्स डंबल का जो मोमेंटम था वो ट्रांसफर हो गया है फ्लोर को. तो वी हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मच मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड और what was the momentum of initial momentum of dumbbell. What was the initial momentum of dumbbell? Okay, that is very simple, so we can do this. So जैसे ही डंबल नीचे जाएगा तो मोमेंटम उसका इंक्रीज होगा. ऑब्वियसली कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइंड में आपके आना चाहिए. दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So it keeps increasing 9.8 meter per second square rate से, per second rate से it will keep increasing, okay, because value of g is 9.8 meter per second square. So it will keep increasing. So which momentum will be transferred? Which momentum will be transferred? Momentum just before the collision. Strike करने से just पहले जितना momentum था वो momentum transfer हो जाएगा. So we have to calculate final momentum, और final momentum के लिए हमें चाहिए final velocity. But that is not given, no problem, we can easily find out by equations of motion. When we are given distance, initial velocity and acceleration, and we have to find out v, then obviously आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए. We will use third equation of motion, 2as is equal to v square minus u square. Okay, substitute the values. 2 into 2as equal to v square minus u square. 2as is equal to v square minus u square. Okay, so acceleration you can take 10. तो 10 will be plus or minus. You know, free fall में डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड से और मोशन भी डाउनवर्ड से डायरेक्शन सेम है. अगर ऊपर थ्रो करते हैं तो मोशन की डायरेक्शन एक्सेलरेशन से अपोजिट होती तो हम माइनस लेते. ठीक है, डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर मतलब मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा 0.8. फाइनल वेलोसिटी वी हैव टू कैलकुलेट. इनिशियल वेलोसिटी यू नो दैट फ्री फॉल में ऊपर से कोई नीचे गिर गया तो फ्री फॉल होता है 0, इनिशियल वेलोसिटी होगी. ओके, सो दैट विल बी 16 इज इक्वल टू v स्क्वायर. फाइनल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ सिंपली वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल मोमेंटम और मोमेंटम विच इज ट्रांसफर टू द फ्लोर. So final momentum will be m into v, right? So mass of the object is 0.8 kilograms. Mass of the object is 10 kilograms, and velocity is 4. So 40 kilogram meter per second is the final momentum, or momentum transferred is 40 kilogram meter per सेकेंड. यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, हर क्वांटिटी की यूनिट आपको ध्यान होनी चाहिए. अगर यूनिट्स ध्यान नहीं है तो आप फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज p इक्वल टू एम वी. सो m इज किलोग्राम, v इज मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दैट इज द मोमेंटम. सो दिस मच मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द फ्लोर. I have solved a lot of numericals problems. One more topic in which you are generally confused is force of friction. What is force of friction? You know that force of friction is the opposing force between the surface and object. कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस पर मूव कर रहा है तो जो अपोजिंग फोर्स होगा सरफेस का ऑब्जेक्ट पर, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स? इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, कितना डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, कि ऑब्जेक्ट का नेचर, मटेरियल कैसा है, सरफेस कैसा है, रफ है, स्मूथ है. और देयर इज अ ग्राफ जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, 9th में नहीं, आगे 11th में है, कि फ्रिक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है. देखिए
स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं फ्रिक्शन चेंज हो रहा है और बाद में कांस्टेंट. तो व्हाट इज दिस? दिस इज द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स. जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं और जो फ्रिक्शन फोर्स. सो इमेजिन द सिचुएशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट है फर्स्ट कहीं भी फ्लोर पर किसी भी सरफेस पर रखा है, आप उसको मूव करना चाह रहे हैं. दैट इज नॉट मूविंग. वो मूव नहीं कर रहे. व्हाट डज इट मीन? देखिए, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर कब रहता है? तब रहता है जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स ना आए. अगर उस पर कोई फोर्स नहीं है या फिर बैलेंस्ड फोर्सेस हैं. देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है ना, तो उस पर या तो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं इस तरीके से, या फिर ग्रेविटेशन वाला जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशन नीचे और उसका रिएक्टिव फोर्स ऊपर, तो भी बैलेंस्ड होता है. ठीक है. तो फोर्स लगाने के बाद भी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, स्टेट चेंज नहीं कर रहा है. स्टेट नहीं चेंज होती जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स ना आए. मीन्स ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. सो इट मीन्स अब भी उस पर बैलेंस्ड फोर्स है. जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही फोर्स वापस लग रहा है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. तो जब भी आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो, मूविंग नहीं, दैट इज नॉट मूविंग. इट मीन्स दैट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स. जब तक कोई ऑब्जेक्ट जो किसी सरफेस पर रखा है और वो मूव नहीं हो रहा है, इट इज प्लेस्ड on a surface and it is not moving, you are applying force and still it is not moving, it means that your applied force is equal to friction force. These forces are balanced, so it is not moving. But आप जब और ज़्यादा फोर्स लगाते हो, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हो, या 2 लोग 4 लोग मिलकर फोर्स लगाते हैं, तब तो मूव हो जाता है. क्यों हो जाता है? in that case balanced forces do not exist. जो इक्वल अपोजिट फोर्स थे वो इक्वल अपोजिट नहीं रहे. अब एक तरफ कम हो जाता है, दूसरी तरफ ज़्यादा. मीन्स अनबैलेंस्ड फोर्सेस कम इनटू अकाउंट. जो आपने फोर्स अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स. सो ये ग्राफ जो है इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं. देखिए, जब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तब तक जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर. फिर एक वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग मतलब कहाँ तक, व्हाट इज द लिमिट ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की कितनी लिमिट है, फ्रिक्शन कितना रोक सकता है ऑब्जेक्ट. ठीक है. आफ्टर लिमिटिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है. देखिए आप, ये जो फाइनल जो वैल्यू थी फ्रिक्शन उससे थोड़ी कम हो जाती है. और फिर ये कांस्टेंट रहता है. कांस्टेंट मतलब आप अपना फोर्स बढ़ा सकते हैं लेकिन फ्रिक्शन फोर्स सेम रहेगा. इसका मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे आप उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट आगे ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा. सो दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके. सो देखिए, यहाँ पर जब स्टैटिक फ्रिक्शन था तो यहाँ पर जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मीन्स जितना फोर्स आपने अप्लाई किया ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट ने उतना आप पर अप्लाई किया. या फिर ये भी बोल सकते हैं कि आपने ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट ने सरफेस पर भी फोर्स अप्लाई किया. ठीक है. सो जितना फोर्स ऑब्जेक्ट सरफेस पर अप्लाई करता है उतना ही सरफेस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेगा. मीन्स उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. राइट. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर. दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. बट दिस इज ओनली अप्लाइज अप टू स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है. तो आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स फिर नहीं रहती. इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ कि किस टाइम तक जो है, किस लिमिट तक, वो लिमिट है लिमिटिंग फ्रिक्शन तक. लिमिटिंग फ्रिक्शन तक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स रहेंगे तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगा. थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. एंड ऑल्सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना हो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. सो बोथ लॉज आर एप्लीकेबल. ठीक है. बट आफ्टर दैट फ्रिक्शन बिकम्स कांस्टेंट and unbalanced forces come into account. External force, applied force becomes greater than frictional force, so it keeps moving. All right. So always remember this concept. So based on this concept, there is a question in your book that you know that according to third law of motion, equal and opposite force. Okay, there are equal and opposite force, but remember they do not cancel each other.
थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो फोर्सेज होते हैं इक्वल एंड अपोजिट, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हाँ, अगर बैलेंस्ड फोर्स है एक ही ऑब्जेक्ट पर तो वो कैंसिल करेगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा होता है थर्ड लॉ में, लेकिन अगर कोई मैसिव ट्रक है, बहुत हैवी ट्रक है और आप उसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल नॉट मूव। सो व्हाई डज नॉट इट मूव? कोई हैवी ट्रक आपके, कोई भी हैवी चीज़ है, तो व्हेन यू ट्राई टू मूव इट डज नॉट मूव। सो देर आर वेरियस रीजन्स। आप सबसे पहले इनर्शिया का सोच सकते हो कि इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, मास बहुत ज़्यादा हो, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है, तो इट विल नॉट ईजिली, इट विल टेंड टू रिमेन एट रेस्ट मोर। सो ये भी ठीक है, लेकिन एक्चुअली व्हाई डज ट्रक नॉट मूव? आप तो बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी ट्रक मूव क्यों नहीं कर रहा है? वट विल बी योर करेक्ट आंसर? यू कैन ऑल्सो से दैट, अगर आप कोई स्टूडेंट ये भी सोचे कि इट इज़ बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल ईच अदर, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग आप बोल रहे हैं कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल ईच अदर, तो वो गलत है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कैंसिल नहीं होते। हाँ, अगर आपके दिमाग में कोई और फोर्स है, जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, then you can say that yes, force of friction is cancelled by applied force until the object does not move. Okay, so actual जो correct answer होगा कि कोई ट्रक, कोई भी चीज़ आप सरफेस पर है, कोई भी चीज़ सरफेस पर रखी हुई है और वो मूव नहीं कर रही है, तो उन सभी क्वेश्चंस का यही आंसर होगा कि it does not move because static friction is equal to applied friction. Static friction की friction, that friction in which object remains at rest. So answer is because static friction is always equal and opposite to the applied force. ठीक है, so आपको मेंशन करना पड़ेगा इक्वल एंड अपोजिट क्यों होता है, वो फ्रिक्शन की वजह से, कि स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल एंड अपोजिट टू अप्लाइड, दैट इज व्हाई these two equal and opposite forces cancel each other. अगर आप डायरेक्ट बोल दोगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसिल ईच अदर, तो वो गलत हो जाएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ऐसा नहीं होता है कि आप ट्रक को पुश करें, ट्रक आपको पुश करे, तो इस वजह से नहीं। यू हैव टू से दैट फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इक्वल है अप्लाइड फोर्स के, दैट इज व्हाई इट डज नॉट मूव। आफ्टर दैट अप्लाइड फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जब स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाता है, देन अप्लाइड फोर्स बिकम्स ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है बट अप्लाइड फोर्स बढ़ता रहता है। तो इस वजह से आफ्टर दैट, आफ्टर अ लिमिटिंग फ्रिक्शन, आफ्टर दिस लिमिट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। ओके, सो कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, वन मोर क्वेश्चन इज यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी ट्राइंग टू मूव अ वुडन कैबिनेट। 200 न्यूटन, 200 न्यूटन के अप्लाइड फोर्स से हम एक वुडन ब्लॉक को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जिस टाइम हम ट्राई कर रहे हैं उस टाइम जो है फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को, वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, देन इट विल इक्वल्स अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स विल आल्सो बी 200 न्यूटन। ठीक है, until the object starts to move. But when we are intending to move the object, we are trying to move the object, then in that case friction force will also be 200 newtons. Okay, so